Hello everyone, I hope you all are doing well and your preparations are also going on a smooth pace. As we all know that the forthcoming examination of 10 plus 2 lectureship is on its way. The dates and syllabus are still certain or uncertain, I can say. As I have already mentioned that there is one component which is going to be common as far as English is concerned. That is the British history from 14th century to T.S. Eliot. सो हम एक सीरीज चला रहे हैं और अभी तक जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इराज और टाइम पीरियड्स हैं उनको मैंने डील करा है चौसियन एज से लेके लेट एलिजाबेथन एज तक. इन लास्ट क्लास आई डेल्ट विद मेजर प्ले राइट of Elizabethan era and he was Ben Jonson. I introduced you all with the brief introduction of the playwright Ben Jonson. For example, we talked about his fatherhood, that he was father of the comedy of humors. Besides, he was classically trained and he respected all three unities in comparison to Shakespeare, where Shakespeare respected only one. I can say Shakespeare admired only one unity, that was unity of action. But in case of Ben Jonson, he imitated or he admired, he gave the best esteem to all three unities, the unity of action, time and place. Besides, I mentioned that he was the first unofficial poet laureate, and there is a particular group of writers which is associated with Ben Jonson. That group is Cavaliers, and Cavaliers considered him as their literary father. In nutshell, Cavaliers were called as the sons of Ben or the tribe of Ben. So today I'm going to deal with a couple of most important plots written by Ben Jonson. First is Alchemist, very important. मैंने आपसे पहले भी बात करी है कि एल्केमिस्ट एक ऐसा प्लॉट है जो एस टी कॉलरिज के मुताबिक है ना. एस टी कॉलरिज, एज वी ऑल नो, एस टी कॉलरिज इज वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक पोएट. He mentioned about the plot of Alchemist as best plot of literature. Besides, S.T. Coleridge ने टॉम जोन्स के प्लॉट को और इडिपस रेक्स के प्लॉट को भी बेस्ट प्लॉट्स कहा है. और टॉम जोन्स इज अ प्ले रिटन बाय, इट्स अ नॉवल बेसिकली रिटन बाय हेनरी फील्डिंग, and Oedipus Rex is written by Sophocles. Important रहेगा ये. Next, let me come directly to Alchemist. As far as the genre of Alchemist is concerned, the examiner will inquire from the aspirants that what is more particularly Alchemist. I mean, what's the genre of Alchemist? So it is a comedy. Alchemist is a comedy, all right. And there was a question in UGC Net that what historical happening or what moment is in the background of Alchemist. It is the spread of Great Plague. There is spread of great plague, जिसको आप ब्लैक डेथ भी कहते हैं. All right. So to escape the horrors or the dreadful impacts of Great Plague, there is a character named as Lovewit. Lovewit shifts from his home on temporary basis to a countryside. ऑल राइट. लवविट जो हैं वो अपने घर से एक टेम्परेरी शिफ्ट करते हैं टू escape the deadly impacts of the Great Plague, and he handovers, Lovewit handovers the charge of his house
to a butler, all right? And butler is a main servant, a male servant. The name of butler was Jeremy. ये जर्मी को अपने घर का सारा इंचार्ज दे देता है. और जर्मी क्या करते हैं? जर्मी by making best use of the absence of Lovett, he turns the house of Lovett, ये Lovett के घर को क्या कर देता है? एक इलीगल एक्ट्स का अड्डा बना देता है. ऑल राइट. और Lovett, as we all know, he is owner of the house. He placed his house under the charge of a butler named Jeremy. अब जर्मी को यहाँ पे ना एक और कैरेक्टर ज्वाइन करते हैं. द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर इज सटल. ऑल राइट. सटल और जर्मी जो हैं वो दोनों मिलके अब यहाँ पे एक इलीगल काम को चलाते हैं. कहाँ पे? लवविट के घर में. ऑल राइट. एंड जर्मी टर्न्स हिमसेल्फ इनटू कैप्टन फेस. ऑल राइट. तो कैप्टन फेस एंड जर्मी इज वन एंड द सेम नेम. डोंट गेट डिस्टर्ब्ड. अब इन सारे कैरेक्टर्स को, लवविट तो अपनी कंट्री साइड चले गए हैं, जर्मी इज देयर एंड सटल इज देयर. सटल और जर्मी को यहाँ पे एक और कैरेक्टर ज्वाइन करता है. द नेम ऑफ कैरेक्टर इज डॉल कॉमन. ऑल राइट. एंड डॉल कॉमन इज अ प्रोस्टिट्यूट. क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि एल्केमिस्ट के अंदर डॉल कॉमन कौन है? तो डॉल कॉमन इज अ प्रोस्टिट्यूट. अब ये तीनों लोग मिलके क्या करते हैं? उस घर के अंदर जो लवविट ने जर्मी के चार्ज में रखा है वहाँ पे एक ब्रॉथल खोल देते हैं. ऑल राइट. और आगे क्या होता है? एट वेरी बिगिनिंग देयर इज अ हाई वोल्टेज डिस्कशन और यू कैन से हाई वोल्ट आर्ग्यूमेंट बिटवीन सटल एंड जर्मी, जिसको आप कैप्टन फेस भी बोलते हैं. और इस डिस्कशन का जो सेंटर है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. दैट हाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट आवर वेल्थ. ऑल राइट. अब डॉल कॉमन इज अ प्रोस्टिट्यूट. शी सेज दैट आई विल नॉट accompany you. Why? Because you are arguing or you are fighting on a meaner cause. And how we are going to proceed with our job, जो हमने पर्पस को, जो हमने एम किया है पर्पस को कि हमने किस तरीके से बिजनेस को रन करना है. ऐसे तो हम बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं. ऑल राइट. तो वो ये बात कहती है कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊँ. आगे क्या होता है? फेस जो है, आई मीन कैप्टन फेस, एंड कैप्टन फेस इज जर्मी. कैप्टन फेस एक चैलेंज करता है किसको? एक धमकी सी देता है. किसको देता है? सटल को. कि सटल तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, अदरवाइज आई विल सर्कुलेट योर पोर्ट्रेट इन द होल मार्केट एंड दैट पोर्ट्रेट विल बी मोस्ट अगलीस्ट पोर्ट्रेट. और उस पोर्ट्रेट को वो कंपेयर करता है कि तेरा पोर्ट्रेट जो है वो किसके पोर्ट्रेट से भी अगली होगा. द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज गैमियल रैटसे. एंड गैमियल रैटसे इज अ हाईवेमैन. ऑल राइट. कैप्टन फेस आई मीन जर्मी सटल को कहते हैं कि मैं तेरी एक ऐसी इनग्रेविंग को सर्कुलेट कराऊंगा जो कि गैमियल रैटसे के फेस से भी अगली होगी. ऑल राइट. Now there is an introduction of another character, and that character is also important. The name of that character is Dapper. Dapper is first customer. इनका जो फर्स्ट कस्टमर होता है उसका नाम डैपियर होता है. ऑल राइट. And Dapier is first customer. Doll Common is a prostitute, and there is a illegal activity carried on the part of Captain Face and Subtle. तो Dapier इनका फर्स्ट कस्टमर होता है. ऑल राइट. Dapier जो है वो Subtle से रिक्वेस्ट करता है. Dapier requests, he made a request to Subtle that he want to
seize a supernatural spirit. ऑल राइट, वो एक सुपरनैचुरल स्पिरिट को सील करना चाहता है. द नेम ऑफ दैट सुपरनैचुरल एलिमेंट इज फैमिया, FAMALIA. तो क्वेश्चन बन सकता है कि सुपरनैचुरल एलिमेंट का नाम है, क्या नाम है? तो उसका नाम फैमिया है. ऑल राइट. डैपियर जो है वो फैमिया को सीज करना चाहता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, डैपियर ऑल्सो वॉन्ट टू विन. डैपियर ऑल्सो वॉन्ट टू विन. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. डैपियर किसको विन करना चाहता है? द क्वीन ऑफ फेरी. द क्वीन ऑफ फेरी. तो क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्वीन ऑफ फेरी किस वर्क के अंदर मेंशन्ड है, और हु वांट टू विन द हैंड ऑफ क्वीन ऑफ फेरी? इट इज डैपियर. ऑल राइट. नाउ आगे क्या होता है? इनका जो सारा इलीगल एक्ट का जो भी कारोबार था वो चल पड़ता है. ऑल राइट. सेकेंडली देयर इज another character named as Drugger. Dapper and Drugger are two different characters. Drugger is a tobacconist. All right, एक tobacconist है. And there is another character, Sir Epicure Mammon. Sir Epicure Mammon का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा. Why? Because his desire is to gain property with the help of philosopher's stone. All right. तो क्वेश्चन बन सकता है कि who wants to gain the property with the help of philosopher's stone? It is Epicure Mammon. All right. अब Epicure Mammon जो है, एक दिन क्या होता है? he suddenly had a glimpse of Doll Common. Sir Epicure Mammon को एक बार Sir Epicure Mammon sees Doll Common. और डॉल कॉमन कौन है? शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट. एंड एपिक्योर मैनोन जो है वो इसे पहचान लेते हैं कि डॉल कॉमन इज इन्वॉल्व इन एन इलीगल एक्टिविटी. और इसे ये भी पता है कि शी इज सिस्टर ऑफ अ लॉर्ड. दैट मीन्स शी कम्स फ्रॉम अ रेप्यूटेड फैमिली. ऑल राइट. बट ये गेस करता है कि शी माइट बी सफरिंग from madness. All right, that's why she is involved in this act. आगे क्या होता है? There is introduction of a character, Damplant, important character, and her brother named as Castril. All right, Damplant is a widow and the name of her brother is Castril. They also arrived. All right. वो वहाँ पे आ जाते हैं. और अब ये जो सटल है और कैप्टन फेस, आई मीन जर्मी जो बटलर हैं, दे वांट टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ डैम्पलैंट एंड कैस्ट्रियल. ये ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं. और डैम्पलैंट जो है, शी इज अ विडो. अब डॉल कॉमन जो है, शी सडनली स्प्रेड्स अ न्यूज़. दैट न्यूज़ क्या है? कि दैट देयर इज अराइवल ऑफ लवविट. एंड लवविट कौन है? जिसके घर में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जो टू एस्केप द ड्रेडफुल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रेट प्लेग ही मेड अ शिफ्ट टू कंट्री साइड. डॉल कॉमन कहती है कि ही हैज़ बीन अराइव्ड. और लवविट जो है, ही इंक्वायर्स about all this from Captain Face.
आई मीन फ्रॉम बटलर, जिसका नाम जर्मी है। तो जर्मी एक्सक्यूजेज वगैरह मांगता है और जर्मी क्या बोलता है कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, इसके बदले जर्मी बोलते हैं कि आई विल अरेंज डैम प्लांट फॉर यू, कि मैं आपकी शादी जो है डैम प्लांट से करवा दूंगा। ऑल राइट। और फाइनली क्या होता है, देयर इज द मैरिज सेरेमनी ऑफ लव इट एंड डैम प्लांट अ विडो। एंड कैस्ट्रल जो इसका ब्रदर होता है डैम प्लांट का, ही ऑल्सो एग्रीज ऑन दिस मैरिज प्रपोजल। एंड finally Jeremy is left alone to to enunciate the epilogue. फाइनली जर्मी को कहा जाता है कि अब आपको इस प्ले को एंड करना है। ऑल राइट। दिस इज द ब्रीफ प्लॉट ऑफ एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट से इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि एस.टी. कॉलरिज ने एल्केमिस्ट को लेके क्या कहा है, बेस्ट प्लॉट कहा है अलॉन्ग साइड टॉम जोन्स एंड ओडिपस द रेक्स। और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, डॉल कॉमन कौन है, सेरापिक और मेमोन कौन है, डैम प्लांट कौन है, कैस्ट्रियल कौन है, लवविट कौन है, सटल कौन है, जर्मी कौन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑल राइट। डैपर कौन है, क्वीन ऑफ फेरी को मेंशन किया है। सिपरिट फेमिलिया है, जिसको डैपर जो थे वो सीज करना चाहते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले इज एपिसीन। इंपॉर्टेंट रहेगा। एट वेरी आउटसेट एपिसीन का सबटाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। द सबटाइटल ऑफ एपिसीन इज द साइलेंट वुमन। ऑल राइट। इसी तरीके से जो वॉलपोन है, वॉलपोन का सबटाइटल भी इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज द स्लाई फॉक्स। तो वॉलपोन का ब्रीफ प्लॉट मैंने लास्ट क्लास में डील कर लिया था। एपिसीन की बात करेंगे। वॉलपोन की जो सेटिंग है वो इटली में है, वॉलपोन की बात कर रहा हूँ। एपिसीन की सेटिंग जो इट्स इन लंदन। द सेटिंग ऑफ एपिसीन इज इन लंदन एंड इट्स इन प्रोज फॉर्म। ये जो प्ले है वो प्रोजैक फॉर्म में। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मोरोस है। ऑल राइट। ही इज अ ओल्ड वेल्दी माइजर, काफ़ी कंजूस है और इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है। मोरोस जो है ही हेट्स नॉइज। ऑल राइट। इसको शोर शराबे से बहुत नफरत है। और इसका एक नेफ्यू है जिसका नाम ड्यूफिन यूजीन है। ड्यूफिन यूजीन जो है, ही वॉन्ट्स टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मोरोस। ऑल राइट। ही वॉन्ट्स टू बिकम द हायर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मोरोस। मोरोस बोलते हैं कि मैं तेरे को अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि मेरे लिए आपको एक ऐसी वुमेन अरेंज करनी पड़ेगी जिससे मैं शादी करूं और उसको नॉइज से बहुत नफरत हो। एक साइलेंट वुमन चाहिए। दैट्स वाई इसका जो सबटाइटल है दैट इज साइलेंट वुमन। ऑल राइट। तो ड्यूफिन यूजीन इज नेफ्यू ऑफ मोरोस एंड कटबेयर्ड एक और कैरेक्टर है। कटबेयर्ड इज बार्बर ऑफ मोरोस। इज बार्बर ऑफ मोरोस। ट्रूविट is another character. Truvitt is friend of Moros and Ned Claremont. Ned Claremont is, his friend of Dufine Eugene. कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन सारे कैरेक्टर्स के अलावा देर आर कपल ऑफ कैरेक्टर्स मोर जो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। Captain Tom Otter. Captain Tom Otter is a character and there is a pair of knights, Knights, Lawful and Daw.
ऑलराइट, ये नाइट्स हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या होता है कि इन ऑर्डर टू ग्रैब द प्रॉपर्टी ऑफ मोरोस, इसके लिए एक ऐसा मैच ढूंढ लिया जाता है और शादी की डेट्स भी फिक्स हो जाती हैं, शादी भी हो जाती है। शादी में ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जब उस दुल्हन का, उस ब्राइड का फेस रिवील किया जाता है, तो वो वुमन नहीं होती है, वो मैन होता है, वो लड़का नहीं, वो लड़की नहीं होती, वो लड़का होता है। अब यहाँ पे मोरोस जो है वो यूजीन डुफिन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा डिवोर्स अरेंज करवा लो। अब यूजीन डुफिन उससे डिवोर्स अरेंज करने के पीछे एक कंडीशन रख देते हैं कि आपका डिवोर्स तब तक ही अरेंज करूँगा मैं जब तक ना आप मेरे को अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे। ऑलराइट, इस तरीके से यूजीन डुफिन जो है वो मोरोस की सारी प्रॉपर्टी को ग्रैब कर लेता है। ऑलराइट, और बाद में डिवोर्स होता या नहीं होता, इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऑलराइट, तो सबटाइटल इज इम्पॉर्टेंट। दीज कैरेक्टर्स यूजीन डुफिन, यू नो, नाइट्स के जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट है, कैप्टन ओटन, लॉफुल एंड लॉर्ड, लॉफुल एंड डॉ, ट्रूविट, कटबियर्ड एंड मोरोस एंड यूजीन डुफिन इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट एक माइनर प्ले है, इट्स अगेन रिटन बाय बेन जॉनसन। द टाइटल ऑफ प्ले इज बार्थोमेलो फेयर, इम्पॉर्टेंट। बार्थोमेलो फेयर, all right, let me correct with the spelling, बार्थोमेलो फेयर, all right। ये कॉमेडी है अगेन, एंड इट्स डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स, इम्पॉर्टेंट रहेगा। कितने एक्ट्स में इम्पॉर्टेंट रहेगा, प्लॉट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज is considered as most experimental play of Ben Jonson। तो बार्थोमेलो फेयर is most experimental play, it is most experimental play written by Ben Jonson। ऑलराइट, और मेजर कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, इट्स बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटा ड्रामा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिटिल विट है, लव विट कहाँ पे है, एल्केमिस्ट में है, लिटिल विट, विन वाइफ, प्योर क्राफ्ट। ऑलराइट, एंड क्वेश्चन बना हुआ है कि प्ले जब एक्ट हो रहा था तो किस इंसेक्ट की एंट्री से प्ले इंटरप्ट हुआ था। सो प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द एंट्री ऑफ वास्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस डिटेल से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है, एक तो एक्सपेरिमेंटल प्ले है, और बार्थोमेलो फेयर के अंदर देयर इज मेंशन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोज। क्रिस्टोफर मार्लो की एक पोम को मेंशन किया है जिसका टाइटल है हीरो एंड लिएंडर। क्वेश्चन 100% बन सकता है कि बार्थोमेलो फेयर के अंदर मार्लो की कौन सी पोम को मेंशन किया है, हीरो एंड लिएंडर को किया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सपेरिमेंटल प्ले है, और हीरो एंड लिएंडर बाय मार्लो इज एन unfinished poem for your kind information, and it was later on finished by George Chapman, important रहेगा। All right, so this was all about Ben Jonson। Ben Jonson की इंट्रोडक्शन है फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के अंदर 4 लिक्विड्स के नाम क्या है, कैवलियर पोइट्स का रिलेशन कैसा है बेन जॉनसन के साथ, फर्स्ट अनऑफिशियल पोइट लॉरिएट था ये, और पोइटेस्टर इन्होंने एक सटायर लिखी है, किस पे लिखी है, टॉमस डेकर और जॉन मार्स्टन पे। वॉर ऑफ थिएटर्स की डेट इंपॉर्टेंट रहेगी। वॉर ऑफ थिएटर्स में देयर वाज अ लिटरेरी राइवलरी बिटवीन 2 पार्टीज, एक पार्टी में बेन जॉनसन थे, एक में मार्स्टन और डेकर थे। एल्केमिस्ट का प्लॉट इंपॉर्टेंट रहेगा, एपिसिन एंड वोल्पोन का प्लॉट इंपॉर्टेंट रहेगा। बार्थोमेलो फेयर की आपको मैंने इंट्रोडक्शन दी, और बेन जॉनसन ने एज एन एक्टर काम किया है किसमें, टॉमस किड की एक ट्रेजेडी में जिसका नाम क्या है, स्पेनिश ट्रेजेडी है। सो गाइज, आई होप
यू गॉट समथिंग आउट ऑफ टुडेज़ क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके लिए लेके आता हूँ मैं। तो बहुत अच्छे से इन डिटेल्स को मगअप करना है, पॉलिश करना है, रिटेन करना है। ऑल राइट, बाकी आप आपसे इजाज़त चाहते हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।